Hello, good morning. This is my 13th lecture for the September month, and we were discussing about the combination of errors, and in combination of error we have discussed about the addition, subtraction, multiplication, division and power. And now the last thing we shall discuss about the reciprocals. We know that in many physical concepts we consider the reciprocal formula just like that the combination of resistances in parallel. 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So here is the expression 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus dash 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 1 upon Rn for, this is for parallel combination of resistances for two resistors. 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, and Rp can be calculated by R1 R2 upon R1 plus R2. So for the two resistors we shall calculate the resistances or any reciprocal of two physical quantities R1 R2 upon R1 plus R2, and we know that delta Rp upon Rp square is equal to delta R1 upon R1 square plus delta R2 upon R2 square plus minus. If delta R1 and delta R2 are the errors in resistances R1 and R2, then absolute error delta Rp is equal to plus minus delta R1 upon R1 square plus delta R2 upon R2 square into Rp square. So absolute error can also be written as delta Rp is equal to plus minus delta R1 upon R1 square into Rp square plus delta R2 upon R2 square into Rp square. This is the expression for the absolute error. And now we shall discuss about the fractional and percentage error plus minus delta Rp upon Rp is equal to, we find out the value 1 upon Rp into delta R1 upon R1 square Rp square plus delta R2 upon R2 square Rp square. And for percentage error it was the fractional error. Here we shall write fractional error. And about percentage error, the third type of error plus minus delta Rp upon Rp into 100% is equal to plus minus 1 upon Rp delta R1 upon R1 square Rp square plus delta R2 upon R2 square Rp square into 100%. So if we want to calculate the fractional and percentage error, we just find out the absolute error. When absolute error is divided by Rp,
we obtain the fractional error, and when a fractional error is multiplied with the 100, then we obtain the percentage error. So these are the formula for the reciprocal of physical quantities, or in addition or subtraction, the result will remain same and it will not change at all. So I am going to give you few more seconds to note it down, and then after we shall discuss about the some important question, and I am going to give you the some important questions to you which you will solve it and then do it in your registers. Okay. If question number 1, if our resistance R is equal to V upon I, and or V is equal to 100 plus minus 5 volt, and I is equal to 10 plus minus 0.2 ampere, then calculate resistance with limits of error. This is a question given to us, and we know that for resistance R is equal to V upon I, the formula is given to us. 100 upon 10 is equal to 10. So this is the resistance for the potentials and current, and now we determine the value of fractional error. Delta R upon R is equal to plus minus delta V upon V plus delta I upon I. वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग. डेल्टा V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 अपॉन 100 प्लस 0.2 अपॉन 10 प्लस माइनस 5 अपॉन 100 प्लस इसका डेसिमल हटाएंगे, नीचे एक और 10 आ जाएगा 2 अपॉन 100, सो प्लस माइनस 5 प्लस 2 अपॉन 100 और प्लस माइनस 7 अपॉन 100, या 0.07. ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई. ये हमारे पास आ गया फ्रैक्शनल एरर आ गई. अब फ्रैक्शनल एरर आने के बाद अगर हम लोग एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको कुछ नहीं करना. जो फ्रैक्शनल एरर आपके पास है उसी को R से मल्टीप्लाई कर देना. प्लस माइनस डेल्टा V अपॉन V
प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू आर। ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है और ये वाली वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 0.07 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा 0.7। ये एब्सोल्यूट एरर आपके पास आ गई। फर्स्ट एक्सप्रेशन अगर हम लोग निकालना चाहें तो r प्लस माइनस डेल्टा आर, और यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 प्लस माइनस 0.7। ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यू आई। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, अगर हमारे पास परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। फॉर्मूला तो आपके पास है ही सही, डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई प्लस माइनस इंटू 100%। तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, यही वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी, 0.07 into 100%. So the percentage error will becomes equal to the plus minus 7%. Expression or plus minus percentage error के फॉर्म के अंदर हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस माइनस 7%। ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यू आई। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों के अंदर हमारे पास इसी तरह से वैल्यू कैलकुलेट होगी। फ्यू सेकंड्स आप लोगों के नोट करने के लिए दे देता हूँ मैं, एंड देन आफ्टर वी शैल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now move to second question. If errors involved in the measurement of side of a cube and its mass are 3% and 4% respectively, what is the percentage error in the measurement of its density? ये एक क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, परसेंटेज एरर के बेसिस पर वैल्यूज हम लोगों को दे रखी है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मान लो हमारे पास ईच साइड इज एल हो,
देन डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%, ये वैल्यू आपको दे दी 3%, और डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100%, ये वाली वैल्यू दे दी आपको 4%। इसके अकॉर्डिंग हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है एल क्यूब। सो डेंसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा एम अपॉन एल क्यूब। अब जब ये डेंसिटी हमारे पास आ गई तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, अगर फ्रैक्शनल एरर की बात करेंगे तो डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एम अपॉन एम प्लस एल क्यूब है, पावर किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी इंटू डेल्टा एल अपॉन एम। अगर परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%, परसेंटेज एरर इन डी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100% प्लस 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%। ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एक साथ करो या बाहर अंदर करो, ये आपके पास आ जाएगी परसेंटेज एरर इन मास, और ये आ जाएगी आपके पास परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो हमारे पास इसके अंदर कितना आ जाएगा, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100% इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100% की वैल्यू कितनी दे दी हम लोगों को, 4% प्लस 3 एज इट इज इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% की वैल्यू दे दी हम लोगों को 3%। तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 4% प्लस 3 या 9% is equal to plus minus 13%. This is the percentage error in density of substance. तो ये हमारे पास परसेंटेज एरर आए। अगर हम लोग इसके अंदर क्या चीज कैलकुलेट करना चाहते हैं, फ्रैक्शनल एरर अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 100 से इसको डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास डेल्टा डी अपॉन डी फ्रैक्शनल एरर इफ यू वांट टू कैलकुलेट प्लस माइनस 13 अपॉन 100, तो आ जाएगा प्लस माइनस 0.13 आपके पास इसके अंदर आ जाएगा। तो ये हो जाएगी आपके पास फ्रैक्शनल एरर। अगर वो डेंसिटी क्वेश्चन के अंदर देता है तो आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई अगर इसे कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरह से हमारे पास अगर एब्सोल्यूट एरर ये थी आपके पास फ्रैक्शनल एरर, और अगर डेंसिटी गिवन हो तो एब्सोल्यूट एरर भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.13 इंटू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। जो क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो हम लोग इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करके और एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग चाहें तो कोई भी परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन के अंदर भी फ्रैक्शनल एरर और एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मान लो हमें नॉर्मल एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करनी हो और फिर अगर हम लोग चाहें कि उसमें फ्रैक्शनल और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करें तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्यू सेकंड्स आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए है और इसी के साथ हमारे ये एरर वाला पोर्शन कंप्लीट होता है।